Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 16 of differential geometry. लास्ट लेक्चर में हमने सिलेंड्रिकल हेलिक्स के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि कैसे टॉर्शन और कर्वेचर और फ्रेने फ्रेम को हम यूज़ करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी कर्व्स हैं जो कि सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि गिवन एनी वेक्टर फील्ड in 3D space, how we can calculate the covariant derivative. So covariant derivative is just like calculating the rate of change of a vector field in a certain direction. So just like if this is a vector field, then I want to calculate its rate of change in a, let's say in this direction, then we can do it using covariant derivative. And then we simplify the calculation of the covariant derivative by expressing the covariant derivative in terms of Euclidean coordinates, and basically we used directional derivative to express covariant derivative of a vector field, and once we did that, then we can also use all of the properties of the directional derivatives to get properties of the covariant derivative. And then we calculated the covariant derivative vector field. So given any vector field in R3, we can calculate the covariant derivative of a vector field W with respect to the vector field V, which will give us the rate of change of W in the directions given by the vector field V. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम कर्व्स से दूसरी ज्योमेट्रीज पे जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने कर्व्स के बारे में काफ़ी लंबी डिस्कशन की थी। हमने उसके फ्रेने फ्रेम के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने फ्रेने फार्मूलाज को डिस्कस किया था। इस तमाम में हमने कर्व्स की ज्योमेट्रीज को डिटेल से डिस्कस किया। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसी मेथड को जनरलाइज करके डिस्कस कर सकते हैं other geometries in R3 like surfaces or any other geometry in R3 or R3 itself. इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, and we will be using the idea of frame fields, and we will be calculating some frame fields and their coordinate functions. So let's recall what we did for the curves case. हमने सबसे पहले गिवन एनी कर्व, सबसे पहले हमने कोई सी भी कर्व गिवन है, हमने सबसे पहले कर्व के हर पॉइंट पे एक फ्रेम फील्ड डिफाइन किया, टेंजेंट, नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल, एंड वी कैन डू इट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व. सो कर्व के हर पॉइंट पे हमारे पास म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, टेंजेंट, नॉर्मल एंड बायनॉर्मल वेक्टर्स. सबसे पहले हमने ये फ्रेने फ्रेम डिफाइन किया था. उसके बाद हमने देखा कि इसके रेट ऑफ चेंज को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू नो व्हाट इज टी प्राइम, एंड सिमिलरली आई वांट टू नो व्हाट इज एन प्राइम एंड व्हाट इज बी प्राइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेंजेंट वेक्टर फील्ड. And similarly, the rate of change of the normal vector field and the rate of change of binormal vector field. And that's where the Frene formulas are useful for, because we can express this rate of change in terms of T, N and B itself. So किसी भी point पे हमने rate of change of tangent find out करना, तो हम उसको express कर सकते हैं in terms of this Frene frame T, N and B. And this was a very clever approach to study the geometry of the curves. In 1847, Frene formulas were discovered by Johann Friedrich Frene, और उसने ये formulas अपने thesis में discover किए थे. Similarly, in 1851, Joseph Albert Serre, उसने भी सेम फार्मूलाज को डिस्कवर किया था, और उसने इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेने ये फार्मूलाज डिस्कस किए थे. सो इसका मतलब है कि फ्रेने ने
और सैरे ने, दोनों ने ये फार्मूलाज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किए थे, तो इसलिए हम इसको फ्रेने-सैरे फार्मूलाज भी कह सकते हैं। सो फ्रेने-सैरे फार्मूलाज हम यूज करते हैं टू डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ द कर्व, to see what is curvature, what is torsion of the curve, and to see other geometrical properties of the curve. So what is the end line? The end line is we associated a frame at each and every point of the curve, and then we calculated the rates of change of those three frames T, N and B, and we calculated the rates of change in terms of them itself, like T prime can be written in terms of T, N and B, N prime can be written in terms of T, N and B again, and B prime can be written in terms of T, N and B. And now can we adopt the same approach when we are going from curves to surfaces? Now we want to generalize our methods, we want to extend our approach to discuss other geometries in R3 and in fact R3 itself. So what is the idea? So the idea is very simple. Just like हमने कर्व के हर पॉइंट के साथ एक फ्रेम असाइन किया था, 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. सो कर्व के हर पॉइंट के साथ आप देख सकते हैं एक म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का एक फ्रेम एसोसिएटेड है. सो द आइडिया फ्रॉम गोइंग फ्रॉम कर्व टू सरफेस इज वेरी सिंपल. डू द सेम फॉर एनी ज्योमेट्री. लेट्स से इस एग्जांपल में हमने एक स्फीयर को लिया है. सो स्फीयर के हर पॉइंट पे हम एक म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का फ्रेम ले लेते हैं और उसके हर पॉइंट से इसको एसोसिएट कर देते हैं. और जस्ट लाइक वी कैलकुलेटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ T, N and B. So we calculated T prime, we calculated N prime, we calculated B prime, and this was given by Frane-Sare formulas. We need to calculate, so let's say this is E1, this is E2 and this is E3. So we want to calculate E1 prime, E2 prime and E3 prime. So this is the idea. Assign a frame to each and every point to any surface. So इस example में हम सिर्फ स्फीयर ले रहे हैं. कोई सी भी ज्योमेट्री आप ले लें, कोई सी भी आर्बिट्रेरी ज्योमेट्री, कोई सी भी शेप आप ले लें R3 में, उसके हर पॉइंट के साथ आप ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एसोसिएट करेंगे और उनमें से क्योंकि हर पॉइंट के साथ E1 एसोसिएटेड है तो उसको आप कहेंगे कि इट्स अ वेक्टर फील्ड. So E1 is a vector field. So just like T is a vector field, so T is a vector field, the tangent vector field, because curve के हर point के साथ आप tangent निकाल सकते हैं. So it's a vector field on the curve. So similarly हम vector field E1 निकालना चाह रहे हैं at each and every point on, let's say, this sphere or any other geometry that we want to discuss. Similarly हम associate करेंगे E2. जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास N जो था यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वो कर्व के हर पॉइंट पे आप एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं. सो इसी तरीके से आप सरफेस के हर पॉइंट पे E2 डिफाइन करेंगे. सो इट विल गिव मी एन E2 वेक्टर फील्ड. जस्ट लाइक सो T इज अ वेक्टर फील्ड, N इज अ वेक्टर फील्ड एंड N इज अ वेक्टर फील्ड ऑन N is a vector field on this curve. So similarly E2 is a vector field on this sphere. And just like we define B, which is another vector field on the curve, we can also define another vector field E3 at each and every point on the sphere. And these three have the following relation कि हर point पे E1, E2, E3 mutually orthogonal भी हैं और यूनिट वेक्टर्स भी हैं.
So basically we are extending this approach to any geometry in R3. And then जैसे कि हमने फ्रेने सारे फार्मूलाज में किया था, t प्राइम, n प्राइम और b प्राइम कैलकुलेट किया आपने, इसी तरीके से हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ E1, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ E2 एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ E3. इन तमाम रेट्स ऑफ चेंज को भी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक हमने कर्व्स के केस में किया था. सो ये हमारे पास मेन स्ट्रेटजी है, मेन आइडिया है, जिसको हम आगे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं फ्रॉम कर्व्स टू द एनी ज्योमेट्रीज in R3 and R3 itself. So what is the end line? The end line is geometry, let's say in this case is sphere. Geometry के हर पॉइंट पे आप म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फ्रेम एसोसिएट करते हैं, और क्योंकि आप हर पॉइंट पे कर सकते हैं तो इसलिए आपके पास 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फील्ड्स आएंगे. जैसे आपके पास T, N और B वेक्टर फील्ड्स थे, इसी तरीके से आपके पास E1, E2, E3 वेक्टर फील्ड्स आएंगे. क्योंकि why E1 is a vector field? Because it is giving me a vector at each and every point on the sphere. So it is a vector field. Similarly, E2 is a vector field, E3 is a vector field. And these 3 vector fields are mutually orthogonal because they are orthogonal at each and every point on the sphere, and they are unit vectors at each and every point. और उसके बाद हम E1 प्राइम, E2 प्राइम, E3 प्राइम फाइंड आउट करेंगे. और E1 प्राइम, E2 प्राइम, E3 प्राइम फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन का रिजल्ट. सो बेसिकली जिस रिजल्ट पे हमारी तमाम कैलकुलेशंस बेस कर रही होंगी वो ये रिजल्ट है अबाउट द ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए वेक्टर. सो दिस इज द मेन आइडिया फ्रॉम गोइंग फ्रॉम कर्व्स टू एनी ज्योमेट्रीज इन R3. But we shall carry on this idea for the Euclidean space R3. Then the restriction of the idea to geometries in R3 is simple. So it's saying that, let's say you have R3 with these axes, and so instead of discussing the sphere or any other geometry in R3, हम क्या करते हैं, हम R3 को डिस्कस करते हैं. सो हमें पता है कि आइडिया क्या है. आइडिया यही है कि हर पॉइंट पे हमने एक म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का सेट लेना है. हर पॉइंट R3 के ऊपर हमने म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स लेने हैं. उसके बाद अगर हम R3 के अंदर इन वेक्टर फील्ड्स को डिस्कस कर लें तो इस तमाम वेक्टर फील्ड को फिर हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू द स्फीयर, कि हम तमाम के तमाम वेक्टर फील्ड में सिर्फ वो वाले ये फ्रेम्स लें जो कि सिर्फ स्फीयर के ऊपर आ रहे हैं और बाकी तमाम को इग्नोर कर दें. तो बेसिकली उस टेक्निक को अगर हम स्फीयर पे रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमारे पास स्फीयर के बारे में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. सो व्हाट इज द आइडिया, हम R3 के हर पॉइंट पे एक फ्रेम फील्ड डिफाइन कर रहे हैं, एक ऐसा फ्रेम डिफाइन कर रहे हैं जो कि 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दे रहा है हर पॉइंट ऑफ R3 पे.
सो कोई सा भी मैं पॉइंट R3 पे ले लूं, ये मुझे 3 वेक्टर्स देगा जो कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है और यूनिट वेक्टर्स हैं। उसके बाद अगर मैंने इस स्फीयर को डिस्कस करना है जो कि इन द मिडल है, अगर मैंने इसको डिस्कस करना है तो फिर मैं क्या करता हूँ, इन तमाम ये जो मेरे पास हर पॉइंट पे 3 वेक्टर्स आ रहे हैं, मैं उन तमाम को इग्नोर कर देता हूँ सिवाय उनके जो कि स्फीयर के ऊपर हैं। और अगर मैं ऐसे कर लूँ तो फिर मैं स्फीयर की ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहा हूँ। सो दैट इज द आइडिया। एंड सिमिलरली इन दिस केस मेरे पास R3 के हर पॉइंट के ऊपर 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, और अगर मैं उनकी ज्योमेट्री को डिस्कस कर लूँ, उनकी मोशन को और उनके रेट्स ऑफ चेंज को डिस्कस कर लूँ, तो मुझे इस ज्योमेट्री को जो कि इन द मिडल एक फेस बना हुआ है, इस ज्योमेट्री को अगर मैंने डिस्कस करना तो मैं इन तमाम वेक्टर्स को जो कि हर पॉइंट पे मुझे 3 वेक्टर्स दे रहे हैं, इन तमाम फ्रेम्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ टू दिस ज्योमेट्री और बाकी तमाम को इग्नोर कर दूंगा। तो बेसिकली मैं इस फेस की ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली ऑफ कोर्स ये जो भी टेक्निक हम डेवलप करेंगे, क्योंकि हम किसी भी ज्योमेट्री के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस विल बी आल्सो ट्रू कि अभी हम जो भी डिस्कशंस करेंगे R3 के हर पॉइंट पे हम 3 वेक्टर्स देंगे। अगर मैं एक कर्व ले लूं R3 में और इन तमाम फ्रेम्स को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कर्व के ऊपर, तो बेसिकली मैं इस कर्व की ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहा हूँ और हमारे पास वही चीज़ आनी चाहिए जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इन द फ्रेने फ्रेम एंड फ्रेने-सेरे फार्मूलाज में। सो हम जनरलाइज कर रहे हैं रिजल्ट्स अबाउट द कर्व्स टू आर्बिट्रेरी ज्योमेट्रीज इन R3 सच दैट अगर मैं उन रिजल्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कर्व्स के ऊपर, तो हमारे पास वही रिजल्ट्स आ जाएंगे जो हमने अभी तक किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन कि हमें पता है कि अगर कोई से भी 2 वेक्टर्स गिवन है R3 में, सो लेट्स से अल्फा इज अ वेक्टर 1 2 3 एंड बीटा इज एनी वेक्टर, let's say 0 minus 1 7, then I can calculate the dot product of alpha and beta in the following way. फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 1 into 0 plus 2 into minus 1, सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इट इज 0 minus 2 plus 21 which is equal to 19. So this is the dot product of any 2 vectors. Now how to take the dot product of 2 vector fields? Now what is a vector field? R3 में हर पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट वेक्टर आ रहा है हमारे पास। So let's say this is the vector field V. So हर पॉइंट के ऊपर R3 के हमारे पास एक टेंजेंट वेक्टर आ रहा है at that point. So this is by definition a vector field. Now let's take the vector field W. So W is another vector field, so it is giving me at each and every point of R3 another vector which may be same at some points to V and which may be different, depends on the definition of W. अब हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट P पे अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है वेक्टर फील्ड V और वेक्टर फील्ड W का, तो मैं लेट्स से इस पॉइंट P1 पे हमने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है वेक्टर फील्ड V और W का, तो मैं डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा V of P and W of P का. So what is V of P in this case? So this vector is V of P and this vector is W of P, or V of P is just a vector because the input are the points and the output are the vectors. So let's say P1, अगर हमने P1 लिया, so V of P1 एक वेक्टर है,
which is tangent to R3 at point P1. So it's just one vector. Similarly, W of P1 is just one vector, and we can calculate the dot product of two vectors, and it will be done in the following way. So it is possible to calculate the dot product of two vector fields by calculating the dot product at each and every point, क्योंकि हर पॉइंट पे वेक्टर फील्ड की आउटपुट एक वेक्टर आएगा और v की आउटपुट एक वेक्टर, w की आउटपुट एक वेक्टर, इन दोनों का डॉट आप इजीली ले सकते हैं क्योंकि वी नो हाउ टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. Similarly, we can calculate the norm of a vector field. Now what is norm of a vector field? So just like before, V is a vector field giving me a vector at each and every point of R3. अब अगर मैंने norm calculate करना है vector field का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर point पे norm calculate कर लेता हूँ V of P का. So let's say this is point P1 and this is point P2, this is point P3. So at each and every point of R3 there is a vector. इस केस में मैं तमाम के तमाम स्केच नहीं कर सकता. अगर मैं तमाम के तमाम स्केच करूं तो जो फिगर है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी. So जस्ट मैं रैंडमली इनमें से कुछ वेक्टर्स हैं उनको स्केच कर रहा हूं. And given any vector, let's say alpha 1, 2, -1, I know what is the norm of alpha. So what is norm of alpha? It is basically the length. So let's say this is a vector alpha in R3. The norm is basically this length. So this is norm of alpha. So कैसे हम calculate करते हैं? So it is calculated by 1 square plus 2 square plus -1 square square root. So we can calculate like 1 plus 4 plus 1, which is 2 plus 4, which is 6 square root. So this is the norm of any vector in R3. इसी मेथड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू कैलकुलेट द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर फील्ड. कैसे? क्योंकि हर पॉइंट पे वेक्टर फील्ड एज एन आउटपुट हमें एक वेक्टर दे रहा है, तो हम हर पॉइंट पे उस वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. सो पॉइंट P1 पे इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट P2 पे इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट P3 पे फाइंड आउट कर सकते हैं और पॉइंट P4 पे फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पे हम इन वेक्टर्स की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. और सो वी कैन डिफाइन द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर फील्ड विच विल गिव मी द लेंथ ऑफ द वेक्टर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट P. और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज जस्ट V of P dot V of P square root. क्योंकि norm of A और alpha square is basically alpha dot alpha. ये हम देख सकते हैं easily. So this implies that norm of alpha is equal to alpha dot alpha square root. So due to this particular reason, we can define that the norm of V of P is the square root of V of P dot V of P. Now what is V of P? V of P is a vector at point P in R3. So इसका इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, उसका स्क्वायर रूट लें, तो मेरे पास V of P की लेंथ आ जाएगी. So let's say there is this vector V of P at point P. So this vector is V of P. क्योंकि वेक्टर फील्ड V की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है एट पॉइंट P, इट विल गिव मी ए वेक्टर, और इस वेक्टर की लेंथ इस फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है. नाउ वी हैव सीन दैट वी कैन डिफाइन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फील्ड्स एंड वी कैन आल्सो कैलकुलेट देयर लेंथ. सो इन दोनों चीजों को यूज करते हुए हम डिफाइन कर सकते हैं 3 वेक्टर फील्ड्स E1, E2, E3 on R3 forms a frame field on R3 if they satisfy the dot product is equal to Kronecker delta Ij. So for example, this equation means that
E1 dot E1 is equal to delta 1 1, which is 1. So let me remind you the definition of Kronecker delta. Delta ij is 0 if I is not equal to j, and it is 1 if I is equal to j. So इस केस में हम दे सकते हैं I is equal to j because I is equal to 1 and j is equal to 1. दोनों 1 है, so they are equal, so the value is 1. और यहाँ से आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं. This implies that E1 नॉर्म जो कि हमने किसी भी वेक्टर फील्ड की नॉर्म कैसे डिफाइन की थी, दिस इज जस्ट E1 ऑफ P डॉट E1 ऑफ P at any point. So this is just 1, so this is square root of 1, this is just 1. So this means that ये जो वेक्टर फील्ड E1 है उसका हर पॉइंट पे जो वेक्टर आ रहा है उसकी लेंथ 1 है. सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं E2 डॉट E2 is equal to delta 2 2, and this is equal to 1 because I is equal to j is equal to 2 in this case. So this implies the norm of E2 is 1, and similarly we have E3 dot E3 is equal to 1, and this implies that the norm of E3 is equal to 1. So हर पॉइंट पे E1 E2 E3 इनकी लेंथ क्या है हमारे पास 1 आ रही है. सो द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज 1 यूनिट, द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर is 1 unit, and similarly the length of this vector is 1 unit. अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों का आपस में एंगल क्या बन रहा है, और हमें ये पता है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 तो उन दोनों के दरमियान एंगल 90 बनता है. सो लेट्स कैलकुलेट द एंगल बिटवीन E1 एंड E2. E1 डॉट E2 बाय डेफिनेशन डेल्टा ij है, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा 1 2. और क्रोनिकर डेल्टा की डेफिनेशन अगर आप देखें तो डेल्टा 1 2 जो है, क्योंकि i इज नॉट इक्वल टू j है, सो दिस इज इक्वल टू 0. और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर मेरे पास 0 आ गया, so this means E1 is perpendicular to E2. So the angle between E1 and E2 is 90 degree right angle. Similarly, we can see that E1 is perpendicular to E3 because this is equal to delta 1 3, which is 0. So this means that E1 is perpendicular to E3. And similarly, we can say that E2 dot E3 is equal to delta 2 3, or delta 2 3 is 0, so this implies E2 is perpendicular to E3. So the angle between any two vectors is 90 degrees. The angle between E1 and E2 is 90, angle between E1 and E3 is 90, and the angle between E2 and E3 is 90 degrees. So R3 के हर पॉइंट पे हमने एक फ्रेम डिफाइन कर दिया है. हर पॉइंट P पे हमने 3 वेक्टर्स डिफाइन किए हैं जो ना सिर्फ यूनिट वेक्टर्स हैं बल्कि उनका आपस में जो एंगल है वो भी 90 डिग्रीज बन रहा है. और अगर हम आज के लेक्चर की शुरू की डिस्कशन में जाएं, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि हमने डिस्कस किया था कि हम R3 के हर पॉइंट पे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, जैसा कि कर्व्स के केस में हमने किया था. यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर हमने डिफाइन किए थे, जो कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व. और उसके बाद हमने देखा था कि हम यही चीज डिफाइन करना चाह रहे हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ R3, और इसीलिए हमने ये चीज डिफाइन की है विच इज द फ्रेम फील्ड. और फ्रेम फील्ड क्या है हमारे पास? फ्रेम फील्ड हमें हर पॉइंट पे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स देगा. Now we are going to do some examples of frame field.
सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए हम मुख्तलिफ फ्रेम फील्ड डिफाइन करते हैं। सो इससे पहले हमने नेचुरल फ्रेम फील्ड देखा हुआ, उसको आज हम दोबारा देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिफाइन करने लगे हैं सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड। सो सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हमें पता है कि R3 का कोई सा भी अगर मैं पॉइंट ले लूं, सो किसी भी पॉइंट को मैं यूनिकली डिफाइन कर सकता हूं बाय यूजिंग x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स। सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट P। इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं, इसकी पोजीशन को मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं बाय टेलिंग कि इसका x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस क्या है। सो लेट्स से दिस इज A1। उसके बाद मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे ये रिक्वायर्ड है इसका y एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज A2। और सिमिलरली मुझे ये रिक्वायर्ड है कि इसका z एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज A3। सो अगर मुझे ये तीन नंबर्स पता चल जाएं, देन दे विल बी ए यूनिक पॉइंट P इन R3। और ऐसा नहीं है कि कोई से भी दो पॉइंट्स हो तो उनके सेम कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं x एक्सिस के लॉन्ग A1, y एक्सिस के लॉन्ग A2 लूं और z एक्सिस के लॉन्ग A3 लूं, तो मेरे पास एक यूनिक पॉइंट आएगा P इन दिस केस। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कोई और मेथड भी है जिससे मैं इसी पॉइंट P को अप्रोच कर सकता हूं इन ए यूनिक वे। सो यूनिक वे मीन्स ऐसा नहीं है कि मेरा जो मेथड है वो मुझे दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे या तीन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लेके जाए, मुझे सिर्फ इसी पॉइंट पे पहुंचना है। एक ऐसा मेथड चाहिए मुझे इस पॉइंट P पे अप्रोच करने के लिए। सो इस मेथड में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के मेथड में पहले x एक्सिस के लॉन्ग मैंने मूव किया A1 यूनिट्स, उसके बाद मैंने y एक्सिस के लॉन्ग मूव किया A2 यूनिट्स, और उसके बाद मैंने z एक्सिस के लॉन्ग मूव किया A3 यूनिट्स, और उसके बाद मैं इस पॉइंट P पे पहुंच गया। सो देयर इज दिस वे ऑफ अप्रोचिंग दिस पॉइंट P। नाउ इज देयर एनी अदर वे ऑफ अप्रोचिंग द सेम पॉइंट? एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, देयर आर मेनी, एंड वन ऑफ द वे इज टू यूज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप क्या करते हैं, आप ओरिजिन से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आप एक एंगल देखते हैं। सो corresponding to this point P there will be a unique angle। सो आप कहते हैं जी कि इतने एंगल पे आप एक लाइन स्केच करें। सो आप ये लाइन स्केच कर ली जिसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है विद पॉजिटिव x एक्सिस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो लेट मी रिपीट, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने एक ऐसी लाइन स्केच करनी है जिसका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है। उसके बाद आपने एक डिस्टेंस देना, डिस्टेंस r, और इस r बेसिकली ये r जो है वो इस पॉइंट P के कोरेस्पॉन्ड कर रहा है। सो इस डिस्टेंस r पे आपने इस लाइन को मेजर करना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन r यूनिट्स इस लाइन के लॉन्ग मूव करना है और आपने यहाँ पे कट कर देना कि इस लाइन के लॉन्ग ये r यूनिट्स बन रहे हैं। सो दिस इज r। द लेंथ ऑफ द लाइन जो कि आपने स्केच किया है बाय टेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस, उस लाइन पे आपने r यूनिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एक पॉइंट ले लेना है। सो दिस इज द पॉइंट विच इज r यूनिट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन and it is on the line which is making an angle theta with positive x axis। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप मूव करेंगे z यूनिट्स in the direction of z axis। so these are z units। और अगर इस प्रोसीजर को आप फॉलो करें तो आप एग्जैक्टली इस पॉइंट P पे पहुंच जाएंगे और आप सिर्फ एक पॉइंट पे पहुंचेंगे। So it will uniquely define a point in R3। So जैसा कि हमने देखा कि एक पॉइंट P पे अप्रोच करने के लिए हमारे पास
दो मेथड्स अभी तक हमने देखे हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप इस एंगल थीटा को लेते हैं और इस आर को लेते हैं, विच इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद आप डिस्टेंस लेते हैं अलोंग जेड एक्सिस, तो आप इस पॉइंट पी पे अप्रोच करते हैं और दिस आर थीटा एंड जेड will uniquely define a point in R3. So that's how we define cylindrical coordinates of the same point. So there is a relationship between cylindrical coordinates and polar coordinates. So cylindrical coordinates में आप देख रहे हैं आपके पास एक सिलेंडर बन रहा है, that's why this is called cylindrical coordinates. और पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी आपके पास सेम अप्रोच थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस को आपने सेम ले लिया। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप सेम r और थीटा लेते हैं, सो दिस लेंथ इज r एंड दिस एंगल इज थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस। लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप z कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर ओनली फॉर r2 और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो r3 के लिए हैं। और अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं एक और z एक्सिस ऐड कर दूं और इस z को एज इट इज रहने दूं, देन इट विल बिकम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स कि अगर मैं z एक्सिस को इग्नोर कर दूं तो दीज आर जस्ट द पोलर कोऑर्डिनेट्स दैट वी डिफाइन इन R2। अब हम एक फ्रेम फील्ड डिफाइन करना चाह रहे हैं। So let me remind you what is a natural frame field. हमने डिफाइन किया था चैप्टर 1 में R3 के अंदर, let's say this is x axis, this is y axis and this is z axis. In the direction of increasing x हमने एक वेक्टर लिया था, यूनिट वेक्टर। At each and every point हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स। सो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो। सिमिलरली हमने कहा था नेचुरल फ्रेम फील्ड में, इसको हमने कहा था दिस इज u1 ऑफ p। सिमिलरली हमने u2 ऑफ p डिफाइन किया था हर पॉइंट पे R3 के, और ये हमें क्या देगा, एक यूनिट वेक्टर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y। सो एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें y इंक्रीज हो रहा है और ये पैरेलल टू y एक्सिस है। एंड सिमिलरली वी डिफाइंड u3 ऑफ p, और u3 ऑफ p क्या बना था हमारे पास, u3 ऑफ p बेसिकली हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है एट द सेम पॉइंट p in the direction of increasing z। so एक ऐसी डायरेक्शन जो कि पैरेलल टू z है और इस डायरेक्शन में z इंक्रीज हो रहा है, मींस दिस इज पॉजिटिव z एक्सिस। और ये फ्रेम हम डिफाइन कर सकते हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ R3। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ R3 मैं एक ऐसा फ्रेम डिफाइन कर सकता हूं जो कि मुझे 3 यूनिट वेक्टर्स देगा जो कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं और तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और इनकी डायरेक्शंस क्या हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग z। सो इसी आइडिया को हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सो क्या हम 3 ऐसे यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं हर पॉइंट ऑफ द R3 पे, सच दैट इसमें से जो एक वेक्टर E1 है, सो बेसिकली इट्स अ वेक्टर फील्ड, लेकिन किसी एक पॉइंट पे मुझे एक वेक्टर देगा। क्या मैं ऐसा वेक्टर फील्ड E1 फाइंड आउट कर सकता हूं जो कि मुझे एक यूनिट वेक्टर दे एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ R3 इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग R, क्योंकि R इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली क्या मैं एक ऐसा वेक्टर फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूं E2 which will be in the direction of increasing theta, which is basically the second coordinate। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने in the direction of increasing x, increasing y, increasing z
ये u1 ऑफ p, u2 ऑफ p, u3 ऑफ p फाइंड आउट किए थे। अब क्या हम ऐसे यूनिट वेक्टर फील्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं e1, e2, e3 such that e1 is in the direction of increasing r, the first coordinate, e2 is in the direction of increasing theta, the second coordinate, and e3 is in the direction of increasing z, the third coordinate. And the answer to the question is yes, we can do it. और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि how to calculate e1 which is in the direction of increasing r. So we are going to calculate it in terms of the natural frame field u1, u2 and u3. So जैसा कि हमें पता है कि e1 और e2 जो हैं वो उसमें z कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा, इन अदर वर्ड्स ये एक प्लेन में लाई करेंगे. सो लेट्स कंसिडर e1. सो लेट्स से दिस इज r, दिस इज थीटा. सो बेसिकली हम एक्स वाई प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम द टॉप. सो बेसिकली हम इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं. सो किसी भी पॉइंट पे, सो लेट मी गो बैक. सो किसी भी पॉइंट पे मैं इस एक्स वाई प्लेन की सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जो जेड एक्सिस की सिचुएशन है उसको नहीं डिस्कस कर रहा. तो बेसिकली इस केस में ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन बनेगी. सो दिस इज आर एंड दिस इज थीटा. लेकिन मैं इसी पिक्चर को थोड़ा डिफरेंट वे में स्केच कर रहा हूँ. सो इन दिस केस दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है. सो इसी पिक्चर को मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया है यहाँ पे. So now I want to get a unit vector in the direction of increasing r. So मुझे r3 के हर पॉइंट पे एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए e1 which is in the direction of increasing r. और similarly मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए which is in the direction of increasing theta. So what is the direction of increasing theta? आप देखें तो थीटा इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. सो इन अदर वर्ड्स दिस इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. सो हर पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और लाइन ले लूं एंड दिस एंगल इज लेट्स से अल्फा एंड दिस लेंथ इज r1, देन बेसिकली this is e1 in the direction of increasing r and this is e2 in the direction of increasing theta. So ऐसे अगर आप मूव करेंगे तो ये तमाम की तमाम चीज़ें चेंज हो रही हैं. थीटा की डायरेक्शन भी और e1 की डायरेक्शन भी इस तरीके से चेंज हो रही है. Now I want to find out a unit vector in the direction of increasing e1. So मैं क्या करता हूँ, जैसा कि हमें पता है कि R3 के हर पॉइंट पे हमारे पास U1 ऑफ P और U2 ऑफ P और U3 ऑफ P भी आते हैं हमारे पास. सो इस पॉइंट P पे मेरे पास U1 ऑफ P भी आएगा. सिमिलरली U2 ऑफ P भी आएगा. व्हाट इज U1 ऑफ P? U1 ऑफ P इज अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x एक्सिस और इन अदर वर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x. U2 ऑफ P इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y. और हम ये तमाम की तमाम सिचुएशन एक्स वाई प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं. जेड एक्सिस यहाँ पे है हमारे पास जिसको हम एट द मोमेंट इग्नोर कर रहे हैं, और इन अदर वर्ड्स हम सिचुएशन को फ्रॉम द टॉप देख रहे हैं. और इस E1 को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2. और मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो एंगल है वो सेम है जो कि ये एंगल है. सो दिस इज एंगल थीटा. So if this is angle theta, then I can write down E1 to be equal to cos theta U1 plus sin theta U2. ठीक है. So E1 का ये जो component है, the component of E1 in direction of U1 is cosine theta. Similarly, the component of E1 in the direction of U2 is sin theta. और इसमें मैं दोबारा आपको बता दूं कि component of E1 in the direction of U1 can be calculated in the following way. So this is just E1 norm
u1 p norm and cosine of the angle between them. So this is just 1, so this is cosine theta. And similarly E1 dot u2 of p is equal to sine theta, because the angle between them is pi by 2 minus theta. So अगर आप cosine pi by 2 minus theta करें तो आपके पास यही आएगा. So that's how we calculate E1 as a combination of u1 and u2. क्योंकि E1 parallel to xy plane है हमेशा, so there is no z component E3. How to write down this E2 in terms of u1 and u2? So what is the angle that E2 makes with positive x-axis? So the angle between E2 and positive x-axis is pi by 2 plus theta. And why is that? Because the angle between E1 and E2 is 90 degrees, क्योंकि ये mutually orthogonal है. और अगर इन दोनों के दरमियान एंगल pi by 2 है तो the angle between E2 and positive x-axis is pi by 2 plus theta. If this is the case, then I can write down E2 is equal to cosine pi by 2 plus theta u1 plus sine pi by 2 plus theta u2. और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा. So that's how we calculate E1 and E2 in terms of the natural frame field at each and every point. क्योंकि यही प्रोसीजर आप R3 के हर पॉइंट पे कर सकते हैं, क्योंकि R3 के हर पॉइंट पे आपके पास एक एंगल थीटा और R आएगा. So basically आप in the direction of increasing theta और in the direction of increasing R यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. और E1 और E2 के दरमियान हमेशा एंगल पाई बाय 2 रहेगा, और थीटा वो एंगल है जो कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है. सो सिमिलरली वी कैन डू द सेम प्रोसीजर हेयर. सो सेम प्रोसीजर हेयर. और अगर मैं कोई और लाइन ले लूं, लेट्स से मैं ये एक और पॉइंट ले लिया है, सो इस डायरेक्शन में भी हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स आएंगे E1 एंड E2, और दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं and they are mutually orthogonal, and we can calculate E1 and E2 in terms of theta in this case as well. So basically in general आप देख रहे हैं कि E1 और E2 की डायरेक्शन चेंज हो रही है, but we can calculate them in terms of theta, और ये सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं. So we can write down E1 cosine theta U1 plus sine theta U2, E2 to be minus sine theta U1 plus cosine theta U2, और E3 हमारे पास U3 के बराबर है, because E3 is in the direction of increasing Z. So this is Z axis, this is X axis, and this is Y axis. So E3 आप देख सकते हैं is in the direction of increasing Z. E3 is in the direction of increasing Z, और हमें पता है U3 is already doing that. U3 is in the direction of increasing Z, and there is no component of U3 in any other direction. So E3 is equal to U3. So हमारे पास cylindrical frame field आ गया है. हमारे पास एक ऐसा फ्रेम फील्ड आ गया है जो कि मुझे हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे मुझे एक यूनिट वेक्टर्स का ट्रिपलेट देगा, जिसमें से दिस इज E1 in the direction of increasing R, E2 in the direction of increasing theta, and E3 in the direction of increasing Z. So E1, E2, E3, and similarly at each and every point it will give me a triplet or three mutually orthogonal unit vectors
E1 is in the direction of increasing r, E2 is in the direction of increasing theta, and E3 is in the direction of increasing z. So this forms cylindrical frame field, और ये cylindrical frame field बनता है because it satisfies this definition, क्योंकि तीनों की जो लेंथ है वो आप इजीली चेक कर सकते हैं. यूनिट लेंथ है, आप E1 का नॉर्म कैलकुलेट कर लें. नॉर्म ऑफ E1 जैसा कि हमने शुरू में देखा था, दिस इज जस्ट E1 डॉट E1 square root. So what is E1 dot E1? This is just equal to cosine square theta plus sine square theta is equal to 1. Similarly, the length of E2 is 1 and the length of E3 at each and every point is 1. And so we have also seen that they are mutually orthogonal. उनके दरमियान जो एंगल है E1 E2 के दरमियान is angle 90, E1 E3 के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, और E2 E3 के दरमियान एंगल 90 है. So it satisfies the definition of a frame field and we call it cylindrical frame field. Basically अगर हमारे पास ऑलरेडी एक नेचुरल फ्रेम फील्ड था तो हमने cylindrical frame field क्यों डिफाइन किया? And the answer to the question is it depends on the practical situation. डिपेंड करता है कि आप किस ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि आप किस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आपके पास एक लीवर आर्म है, और इस लीवर आर्म का जो प्रिंसिपल है वो सेम है जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का है. इसमें जो आर्म है उसकी लेंथ को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, विच इज आर. इस एंगल को आप मूव कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज एंगल थीटा, और इस डायरेक्शन में और या इससे नीचे मूव हो सकता है, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट z. सो अगर आप इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स की मोशन को या इस किस्म के ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को डिस्कस करना चाह रहे हो तो बेसिकली आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी. ये तमाम की तमाम सिचुएशन आप नेचुरल फ्रेम फील्ड में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ज़्यादा आसान हो जाएंगी. आपको जो सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगी इफ़ यू यूज़ द अप्रोप्रिएट फ्रेम फील्ड. सो चूजिंग ए फ्रेम फील्ड रियली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल सिचुएशन. और सिर्फ सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड और नेचुरल फ्रेम फील्ड, सिर्फ ये दो ही फ्रेम फील्ड नहीं है आपके पास. इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्रेम फील्ड्स हैं जो कि आप ज्योमेट्री को मद्देनज़र रखते हुए आप डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो है स्फेरिकल फ्रेम फील्ड की, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लें व्हाट आर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. सो आइडिया इज बेसिकली द सेम. हम स्पेस में किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं यूनिकली, एक ऐसा रूल देना चाह रहे हैं जिससे उस रूल को फॉलो करते हुए हम उस पॉइंट P को अप्रोच कर लें इन ए यूनिक वे. इन ए यूनिक वे मीन्स हम उसी पॉइंट के ऊपर अप्रोच करें. ऐसा ना हो कि हम 2-3 पॉइंट्स पे पहुंच जाएं उस रूल को फॉलो करते हुए, हम सिर्फ एक पॉइंट पे पहुंचे. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करके उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप एक ऐसी लाइन लेते हैं जिसका एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस लाइन के लॉन्ग मूव करेंगे, उसके बाद फिर अलोंग जेड एक्सिस पहुंच के आएंगे उस पॉइंट पे. एक और थर्ड वे भी है विच इज कॉल्ड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इट रियली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि जिस सिचुएशन में आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, इस तमाम कोऑर्डिनेट सिस्टम को और इस फ्रेम फील्ड को. सो फॉर एग्जांपल अर्थ के अराउंड अगर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है और अगर आप इसकी पोजीशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं जिसका ओरिजिन अर्थ का सेंटर होगा. और अगर मैंने वर्ड यूज किया अप्रोक्सीमेटली का, क्योंकि अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, सो अप्रोक्सीमेटली आप इसको ले सकते हैं इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. एंड सिमिलरली देयर आर मेनी सिचुएशन where the spherical coordinates will simplify the situation. Now how to
specify the position of a point in a unique way. So let's say मेरे पास एक पॉइंट P है स्पेस में, तो मैं सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किया था, एक लाइन स्केच करता हूं, मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. सो मैंने एक लाइन स्केच कर ली है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो दिस इज द लाइन. ओके, उसके बाद इसी लाइन को मैं मूव करता हूं इन सच ए वे कि इसका जो एंगल है वो विद एक्स वाई प्लेन के साथ वो फाई रहे. सो बेसिकली इस लाइन को मैं अब डायरेक्टली मूव कर रहा हूं अपवर्ड्स सच दैट दिस मेक्स एन एंगल फाई विद एक्स वाई प्लेन. सो दिस इज द लाइन. Okay, so this angle is phi. और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में हम इस लाइन को कट करते हैं टू ए डिस्टेंस ऑफ रो. सो इस लाइन के अलोंग मैंने फ्रॉम द ओरिजिन, इस लाइन के अलोंग मैंने 5 यूनिट्स पे इस लाइन को कट कर देना, तो मेरे पास एक यूनिक पॉइंट P आएगा. सो इसमें बेसिकली आप दो एंगल्स ले रहे हैं, थीटा एंगल, इस लाइन को मूव किया हमने एट एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिर इस लाइन को हम ऊपर ले गए इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ फाई विद द एक्स वाई प्लेन. और इसको एग्जैक्टली आप इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस लेके जाएंगे. आपने दाएं या बाएं मूव नहीं करना, जस्ट एग्जैक्टली उसको ऊपर उठा लेंगे एट एन एंगल ऑफ फाई. उसके बाद इसी लाइन के लॉन्ग आपने रो यूनिट्स डिस्टेंस ले लेना और आप पॉइंट P को अप्रोच कर जाएंगे. सो इसमें बेसिकली 3 क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है, रो, थीटा एंड फाई, और इनमें से 2 क्वांटिटीज एंगल्स हैं. और ये एंगल थीटा, जैसा कि हमें अंदाजा हो गया होगा, ये एंगल थीटा वही है जो कि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिया था. सो किसी भी पॉइंट P को मैं अप्रोच कर सकता हूं यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. अब हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्फेरिकल फ्रेम को सिलेंड्रिकल फ्रेम में. सो बेसिकली स्फेरिकल फ्रेम को हम कह देते हैं F1, F2, F3. और जैसा कि हमने नेचुरल फ्रेम फील्ड में किया था कि U1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग X, U2 is in the direction of increasing Y, U3 is in the direction of increasing Z. और cylindrical frame field में हमने क्या किया था? E3 is in the direction of increasing Z, E1 is in the direction of increasing R, and E2 is in the direction of increasing theta. इस केस में F1 को हम ले रहे हैं, F1 is in the direction of increasing rho, और F2 को हम ले रहे हैं in the direction of increasing theta, और F3 को हम ले रहे हैं इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फाई. और जैसा कि हम जानते हैं कि E2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, और इस केस में F2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा. सो बेसिकली F2 और E2 सेम है इस केस में, बिकॉज E2 ऑल्सो गिव्स यू ए डायरेक्शन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, और ये थीटा वही है जो कि हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में. सो बेसिकली F2 एंड E2 आर सेम. अब हम डिस्कस करते हैं F1 और F3 को, कैसे हम इनको लिख सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि F1 और F3 वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है क्योंकि F1 और F3 परपेंडिकुलर हैं F2 के, सो बेसिकली ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं. So basically we can write them down as this. So this is F1 and this is F3, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है. अब हमने ये भी देखा कि F2 and E2 are same.
सो इसका मतलब है E1 और E3 भी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में हमारे पास F1 और F2 है. सो बेसिकली दिस इज E1 एंड दिस इज E3. अब हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं F1 और F3 को इन टर्म्स ऑफ E1 एंड E3. अब सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड E1. जैसा कि हम जानते हैं कि E1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग R और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रो, और इस डायरेक्शन में हमारे पास F1 आएगा. नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड E1? So from here we can say that the angle between rho and, so basically this is E1. So E1 is in the direction of increasing R. So basically this is E1. And what is the angle between F1 and E1? We can see that the angle between this line and this rho line is basically phi. So the angle between F1 and E1 is phi. So if this is the angle, तो हम सेम प्रोसीजर को यूज करके जैसा कि हमने सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर किया था, हम देख सकते हैं F1 is cosine phi E1 plus sin phi E3. So that's what we get. Similarly, F3 is cosine phi plus pi by 2, क्योंकि the angle between F1 and F3 is 90 degrees. So the angle between F3 and E1 is pi by 2 plus phi. So cos phi plus pi by 2 E1 plus sin phi plus pi by 2 E3, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस sin phi E1 प्लस cosine phi E3. और हम देख सकते हैं कि F1, F2, F3 तीनों के दरमियान एंगल 90 है, और अगर आप वैसे आपको नहीं नज़र आ रहा तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें F2 और F3 का, तो ये 0 आ रहा, ये आप देख सकते हैं. सिमिलरली F1 और F2 का डॉट प्रोडक्ट 0 है, F1 और F3 का डॉट प्रोडक्ट 0 है. सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं that the norm of F1 is 1 and the norm of F2 is 1 and the norm of F3 is also 1. So ये तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी हैं इस फ्रेम फील्ड ने. सो हर पॉइंट पे हमारे पास म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं जो कि डिफाइंड हैं बाय यूजिंग द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्फेरिकल फ्रेम फील्ड, क्योंकि हर पॉइंट पे हमारे पास एक फ्रेम आ रहा है और इट विल फॉर्म ए फील्ड. सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द point of R3 we will have 3 mutually orthogonal unit vectors. So we have expressed the spherical frame field in terms of cylindrical frame field. अब हम express कर सकते हैं spherical frame field को. So from spherical frame को express कर सकते हैं in terms of natural frame. So इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक्सप्रेस कर देंगे इन E1, E2, E3 की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्फेरिकल फ्रेम की इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम. सो फॉर एग्जांपल F1 will become cosine phi. So what is E1? E1 is basically cosine theta U1 plus sine theta U2 plus sine phi. E3 is basically U3. So इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आएगा cosine phi cosine theta U1 plus cosine phi sine theta U2 plus sine phi U3. So this is the value of F1 in terms of the natural frame field, where F1 is one of the component of the spherical frame field. And similarly we can do the same for F2 and F3,
and this will be an easy and good exercise for you if you can express them in terms of u1, u2 and u3. Now given any vector field, we can write them as a combination of a frame field. So कोई सा भी हमारे पास vector field है, so let's say we have a vector field which will give me a vector at each and every point of R3. On the other hand, मेरे पास हर point पे 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि E1, E2, E3 मुझे हर पॉइंट पे 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दे रहे हैं. So if this is true, then I can write down the vector field in terms of F1 E1 plus F2 E2 plus F3 E3. So this is E1 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 and this is E2 E2 E2. So basically E2 of P. So इसके E1 की वैल्यू इस पॉइंट पे एक वेक्टर होगा, वो ये वेक्टर है. So similarly इस पॉइंट P पे E2 की जो वैल्यू है वो एक वेक्टर होगा. So similarly the rest of them. So I can write down the vector field V in terms of EIs, the frame field. So अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, then I can define the dot product in a much simple way. और ये हमने एक पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो पे डिपेंड करेगा इन द फ्रेम फील्ड. अगर आप एक डिफरेंट फ्रेम फील्ड ले लें तो ये जो कंपोनेंट्स Fi हैं ये डिफरेंट आएंगे, और अगर ये डिफरेंट आएंगे तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी डिफरेंट आएगा दोनों वेक्टर फील्ड्स का. सिमिलरली हम नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो नॉर्म है इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे वेयर Fi's आर component of this vector field. और इसका जो प्रूफ है वो बहुत सिंपल है. किसी भी पॉइंट पे, जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा कि वेक्टर फील्ड था हमारे पास इन ग्रीन वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर फील्ड V हैं, और हर पॉइंट पे मेरे पास E1 E2 E3 आ रहे हैं. सो I can use this orthonormal expansion at each and every point. So basically I can express, let's say this is the point P, this is E1 of P, this is E2 of P, this is E3 of P. So at each and every point I can basically express this vector V in terms of E1, E2 and E3. So if I can do that, then the proof is very simple, and I'm leaving this as an exercise. So far we have seen many frame fields, but for a given problem we would like to choose a frame field that is especially easy to work with. The calculations could be very easy with the right selection of frame field. So अभी तक हमने natural frame field को देखा, cylindrical frame field और spherical frame field, और ये तमाम के तमाम हमें हर पॉइंट पे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स देते हैं. और जैसा कि हमने देखा था कि सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड और स्फेरिकल फ्रेम फील्ड ये डिपेंड करेंगे सिचुएशन पे. किसी सिचुएशन में अगर आप सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड ले लें तो कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी, और किसी सिचुएशन में अगर आप स्फेरिकल फ्रेम फील्ड ले लें तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी. सो किसी भी सिचुएशन में अगर हमें राइट फ्रेम फील्ड चूज हो जाए हमसे तो कैलकुलेशंस में काफ़ी आसानी हो जाएगी. So far what we have learned, हमने ये देखा था कि कर्व्स के केस में जो हमने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी, डिफाइनिंग ए फ्रेम फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व मींस डिफाइनिंग म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स टेंजेंट, नॉर्मल एंड बायनॉर्मल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व. वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू एनी ज्योमेट्री इन द स्पेस. उसके बाद हमने ये देखा कि क्यों ना हम इस स्ट्रेटजी को R3 पे कर लें, और उसके बाद कोई भी ज्योमेट्री हो हमारे पास तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे टू दैट ज्योमेट्री. सो R3 के हर पॉइंट पे हमने फ्रेम फील्ड डिफाइन किया जो कि हमें एक ट्रिपलेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स देगा, और अगर हम ये डिफाइन कर सकते हैं तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे टू सर्फेसेस और एनी अदर ज्योमेट्री
इन R3 हमारे पास उस ज्योमेट्री को डिस्कस करने के लिए टूल्स आ जाएंगे. और अगर इस तमाम टेक्निक को रिस्ट्रिक्ट कर दें टू कर्व्स इन R3, then we will be getting the same results that we already discussed: the Fresnel frame field, the unit normal and binormal vector fields. So next time हम कनेक्शन फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, और आज के लेक्चर में और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम जो टेक्निक्स करेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस सर्फेसेस इन R3, क्योंकि कर्व्स की ज्योमेट्री तो हमने डिस्कस कर ली है. अभी हम एक्सटेंड कर रहे हैं इन टेक्निक्स को टू स्टडी ज्योमेट्री ऑफ हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लाइक सर्फेसेस इन R3. This is the end of the lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.